Good morning, ADC family. सुप्रभात एडीसी परिवार। So good to see you this morning. और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको इस सुबह देखकर। Before we enter in the Word of God, I want to welcome a few people that are in our midst. और इससे पहले हम शुरू करें, मैं कुछ लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में हैं। It's so good to have my mother-in-law, और बहुत ही अच्छा लग रहा है जो मेरी सासू माँ है वो यहाँ पर मौजूद है, Tressa's mom. जो ट्रेसा की मम्मी है। So we want to just welcome her. Mom, can you come here? क्या आप आगे आ सकते हैं? Can you please come so everyone can see you also? We are a small family. Don't be afraid, Just look at each other and smile one more time. हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा सकते हैं। This is Tressa's mom, Michelle. और ये ट्रेसा की मम्मी है और उनका नाम मिशेल है। And I would just like to give her a warm welcome with the pastor must give a warm welcome to her. और पासवानों के नाते हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। I just wanted to encourage you all, and I just wanted to say that, when I entered, I was so touched and so blessed to see the new generation, God's new generation in y'all who were having so much of passion and so much of love. I was really blessed to see your passion and love for the Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I was so blessed the way you all welcomed me. And I was so blessed to see you all so vibrant and filled with the Spirit, I was totally blessed to see your love and your passion for Jesus Christ. And I just say, God is really, really blessed with y'all, and y'all are a blessed church. And God will take y'all a long, long way. I loved your worship. I just loved the way y'all, your strength and your passion, for God, towards God and towards His kingdom and His church. So keep the good work going, and God bless you all abundantly. Thank you so much. Thank you so much. Amen. Amen. Thank you. It's also good to have my, owner of the house. Just want to welcome him. His name is Mr. Dharmendra Mole. Could you please stand, sir? This is my owner, and we thank you for joining us. हम धन्यवाद करते हैं, ये हमारे मकान मालकिन हैं और वो हमारे बीच में जुड़े हैं। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। And we God bless you. We pray for you. आपके पास जीवन होगा हर एक क्षेत्र में, आपके पास जीवन होगा इस पृथ्वी पर, ना कि सिर्फ स्वर्ग में जीवन। और यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो आपको स्वर्ग ले जा सके, बल्कि वो आए कि वो आपको अनंत का जीवन दे सके इस पृथ्वी पर। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? हाँ। So would you please turn with me to Luke chapter 5 verse 36 onwards. और अगर आप लूका उसका 35, we will read up to verse 39. Luke chapter 5 verse 36. लूका का 5वां अध्याय और उसके 35 से हम पढ़ेंगे। It is said there that he told them this parable. और यहाँ कहता है कि उसने उन्हें ये बताया, No one tears a piece out of new garment to patch an old one, otherwise they will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old. और वो कहता है उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। And no one pours new wine into old wineskin, otherwise the new wine will burst the skins, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, ना ही तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। No,
new wine must be poured into new wineskin, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। and no one after drinking old wine wants the new, for they say the old is better. कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वे कहता है कि पुराना ही अच्छा है। May the Lord bless us in the hearing and the reading of His word. और परमेश्वर वचन के सुनने और पढ़ने में हमें आशीष दे। क्या हम एक बार इस वचन को हिंदी में पढ़ सकते हैं एक साथ लाउडली? सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे। Can we read this word in Hindi? Is it there on the screen? Yes. You have the. All those who have Hindi Bible, can we all read it loudly? लूका 5 उसका 36 उसने एक और एक साथ पढ़ना है सभी को। We are going to read it together. If you have English also, you can read in English. Verse 36 onward. उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैवन नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैवन पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। It's important to open our Bibles and read the scripture. और ये जरूरी है कि हम अपने वचनों को खोलकर पढ़ें। There is power in God's word. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। Jesus often taught some, incredible wisdom of God. और यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की बुद्धि की बातें बताई हैं। He had a reason why he told them a parable. और जरूरी एक वजह थी जिसके पीछे वो दृष्टांत को सुनाते थे। First of all, it's very important to understand the culture that Jesus is speaking in. और इसलिए हमें उस संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है जहाँ यीशु मसीह बात कर रहे हैं। Whenever he told them a story, वो जब भी उन्हें कोई दृष्टांत सुनाते थे, he would use a story that they can understand. वो ऐसा दृष्टांत लेते थे जो वो लोग समझ सकें। If he would speak to us, he would probably use the language of Instagram, Facebook, so that you get it. और शायद अगर वो हमसे बात करते तो शायद वो इंस्टाग्राम या फेसबुक की भाषा का इस्तेमाल करते कि हम उसे समझ सकें। He had a reason why he told them this parable. और उनके पास एक वजह थी कि क्यों उन्होंने उन्हें वो दृष्टांत सुनाया। Because ultimately the reason for this parable, because of Pharisees and teachers of the law constantly judging every move that Jesus was making. क्योंकि वहाँ जो फरीसी लोग थे और जो व्यवस्था को सिखाने वाले थे वो हमेशा यीशु मसीह का न्याय करते रहते थे। Now in that context and that culture, now because it is about wine and drinking wine, I want to make few things culturally clear. और हम जब उस संस्कृति और उस जगह के लोगों की बात कर रहे हैं और दाखरस की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। Because some people only would like to take these verses and say it's okay to drink wine. Jesus also was speaking about. और कुछ लोग बस इन वचनों को लेते हैं और कहते हैं कि दाखरस पीना ठीक है कि यीशु मसीह दाखरस का दृष्टांत दे रहे हैं। They don't read other verses in the Bible. और वो बाकी वचन नहीं पढ़ते बाइबल में। They are very interested with these verses. पर वो इन वचनों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। Jesus also turned water into wine. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने जो पानी को दाखरस में बदला। Therefore, sometimes Christians are known as like wine drinking people. और इसलिए कई बार मसीही लोग दाखरस को पीने वाले लोग जाने जाते हैं। That is alcoholic people. और वो है शराब को पीने वाले लोग। That's not true. पर ऐसा सच नहीं है। Scripture forbids drinking wine. बल्कि जो वचन है वो मना करता है शराब पीने से। Paul says, do not get drunk on wine that leads you to a sin. और पौलुस कहता है कि दाखरस से मतवाले मत हो जिससे तुम पाप में गिर जाओ। If you drink wine, surely will lead you to one particular sin. अगर तुम शराब को पीते तो वो जरूर तुम्हें किसी ना किसी एक पाप में गिराएगा। Some it leads to many sins. और कई उगले वो कई पापों में उसने गिराता है। Instead, be drunk with the Holy Spirit. पर वो कहता है कि तुम आत्मा से भरे रहो। So drinking wine was not approved by Jesus. तो यीशु मसीह सहमति नहीं दे रहे हैं दाखरस पीने के लिए। This wine that we particular talk about, और ये दाखरस जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, first of all, was culture that
every houses would have grapes in-house pressed, let it leave naturally to ferment. और हर एक घर में अंगूर लाए जाते थे, उनको निचोड़ा जाता था और जो उनसे रस निकलता था उसको फर्मेंट किया जाता था, उसको सड़ाया जाता था, just to serve as a welcome drink. कि वो लोगों को स्वागत के लिए ड्रिंक की तरह दे सके. People make रूह अफ़ज़ा, जैसे लोग रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, we make शरबत, हम लोग शरबत बनाते हैं. just like that they also made this और उसी तरह से लोग दाखरस को देते थे. Now today the wine that you get is added alcohol. पर जो आज के जमाने में दाखरस मिलता है उसमें शराब होती है. A naturally fermented drink could never lead you to drunkenness. और जो एक स्वाभाविक रूप से जो सड़ाई जाती है जो ड्रिंक, वो कभी भी शराब नहीं होती. As if the dosa batter gets fermented, will you be ever be high with dosas? और जैसे डोसा का जो बैटर होता है वो क्या कहते हैं सड़ाया जाता है, तो क्या हम उसको खा के हमें ऐसा लगता है नशा होता है? No, right? नहीं. Surely this culture had this kind of practice. और इस संस्कृति में ये चीज करी जाती थी. So they would keep wine into small wineskin, like in the picture, I think. और वो जो मशक होती थी उसमें उस दाखरस को रखा करते थे. So what do we understand? Why is Jesus saying these things? और हम इससे क्या समझते हैं, क्यों यीशु मसीह ये सारी बातें कर रहे हैं? Now we understand that this was the culture. That's why he was speaking from these stories and these parables. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस संस्कृति को जानते थे, इसलिए इन दृष्टांत और कहानियों से उनसे बात करते But थे. stories always had a deeper significance, deeper meaning. पर जो उन दृष्टांतों और कहानियों का एक गहरा अर्थ था. There was a reason why Jesus chooses this. और परमेश्वर का एक उसके पीछे वजह है कि उन्होंने चुने ये सुनाना. If you were here on 31st evening service, अगर आप 31 दिसंबर की सर्विस में यहाँ थे, ADC Church, ADC की कलीसिया, I know most of you were away, और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग दूसरी जगह गए हुए थे, but few of us were here. हम में से कुछ यहाँ पर थे. And I shared what God is doing with ADC Church. और मैंने आपसे बांटा कि परमेश्वर ADC कलीसिया के साथ क्या कर रहा What है, is Holy Spirit speaking to us? कि पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रही है, What is the word of the Lord for us? कि परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए. Now, it is always resounding with what God has spoken in past. और ये हमेशा मिलता है उन बातों से जो परमेश्वर ने पहले बोल चुके हैं. First of all, God wants to use ADC to do greater things. और परमेश्वर ADC का इस्तेमाल करना चाहता है बढ़कर चीजें करने के Now, लिए. when we say ADC is not Pastor Pankaj's family, और हम ये नहीं कहेंगे कि जो ADC है वो पास्टर पंकज का परिवार है, it's all of us. वो हम सब हैं. This church is Jesus' church. और ये कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया है. This church equally is our church. और बराबर से ये हम सब की कलीसिया है. God has given a vision to this church. और हाँ, परमेश्वर ने इस कलीसिया को एक दर्शन दिया है. He keeps talking to his church. और वो अपनी कलीसिया से बातें करता है. He keeps bringing the word for और वो उनके लिए वचनों को लेकर आता है. and he keeps giving direction. और वो हमें दिशा निर्देशन देता है. Jesus said, I will build my church. और यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. None of us build church. हम में से कोई कलीसिया नहीं बनाता, Jesus has set his vision. He will build his church. बल्कि यीशु मसीह ने अपना दर्शन बताया है कि वो अपनी कलीसिया बनाएंगे. It is our privilege that we get to participate in that work. पर ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस कार्य का हिस्सा Because बनते हैं. church is not going to be built out of nothing. क्योंकि कलीसिया किसी कुछ नहीं से नहीं बन Jesus सकती है. wants his people. परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है. Jesus places them in that building. और परमेश्वर अपने लोगों को स्थापित करता है उस जगह पे. He has a purpose. परमेश्वर का एक उद्देश्य है. In fact, we get to participate in eternal work. बल्कि हम उसके अनंत के कार्य में हिस्सा ले सकते हैं. It is the most valuable work. और ये सबसे कीमती कार्य है. Because imagine if you do something for this earth, it will not last for long. अगर आप इस पृथ्वी के लिए कुछ करते हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा. You can build a house. आप एक घर बना सकते हैं. You can build, something massive. आप कोई बड़ी सी इमारत बना सकते हैं.
a business. आप एक व्यवसाय बना You सकते हैं. can build many things on this earth, आप बहुत सारी चीजें इस पृथ्वी पर बना but सकते it हैं, has an expiry date. पर वो सब का अंत हो जाएगा. But when we participate with Jesus, पर जब हम यीशु मसीह के साथ साझेदारी में we होते हैं, get to build something eternal. हमें कुछ अनंत बनाने का मौका मिलता है. Church is eternal. If और you जो know. कलीसिया है वो परमेश्वर की नजर में अनंत काल You के लिए are है, going to go in eternity. और हम अनंत काल में जरूर प्रवेश करेंगे. Jesus is coming back to take his church. और यीशु मसीह वापस आ रहा है अपनी कलीसिया को ले जाने, So you and I are part of that church. और हम सब उस कलीसिया का हिस्सा हैं. So this is what the Lord is speaking. तो ये परमेश्वर कह रहा है. It was not just my words. I told this on 31st. और मैंने आपको 31 पे बताया, ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है. And I waited because I wanted most of you to be back from your holidays. और मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं चाहता था आप सब अपनी छुट्टी से वापस आ जाएं, So that you understand what God is doing with his church. कि आप समझ सके कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ क्या कर रहा है. 4-5 of us were gathered हम में से कुछ 4-5 लोग साथ मिले थे, and we began to share and I asked them, what is the Lord saying to you? और मैंने उनसे पूछा कि परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है, God wants to do in ADC. और परमेश्वर क्या करना चाहता है एडीसी में. And the best place God speaks is through scripture, as we और already, सबसे उत्तम जगह जहाँ से परमेश्वर बात करता है वो है उसका वचन. as we've already been telling you. और हम पहले से आपको ये बात बता रहे हैं. Best place God speaks to you is through scripture. और सबसे उत्तम जगह जहाँ से परमेश्वर आपसे बात करता है वो आपका वचन. How many of you hear scriptures on Sunday and you really believe God spoken to you in this church? आप में से कितने can- वचन को सुनते हैं हर सप्ताह और सोच पाते हैं कि हाँ परमेश्वर ने सही से आपसे बात की है. Can you please put your hands? अगर आप अपना I- हाथ उठा सकते हैं, आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उस How वचन many के of you द्वारा. have come and you really heard something and then God has ministered to you? और आपने ऐसी कई बार परमेश्वर के वचन सुनाया, आप जाना है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. The best place God speaks through scripture. और सबसे उत्तम जगह जहाँ से परमेश्वर बात करता है वो है उसका वचन. And so one person said from Isaiah chapter 58, God wants to make, God wants to make ADC a well-watered garden. और यशाया 58 से एक व्यक्ति ने बोला कि परमेश्वर एडीसी को एक फलता फूलता बगीचा बनाना चाहता है. Then second person said, I felt that we have gone through a season of pruning, और एक ने कहा कि हम एक छटाई के समय से गुजरे हैं, but God is going to bring growth. पर परमेश्वर बढ़ोतरी को लेकर आने वाला है. You see, if you read John 15, आप देखेंगे अगर आप यूहन्ना 15 पढ़ते हैं read very carefully. और आप बहुत ध्यान से पढ़ें, It's only that bears fruit, he prunes even more. वो कहता है वही पेड़ जो फल को लेकर आता है परमेश्वर उसे छांटता है. We never started this church by looking at crowd. और हमने ये कलीसिया कभी भी भीड़ देखकर शुरू नहीं की. We started with one person. हमने एक ही व्यक्ति के साथ ये कलीसिया शुरू की. Sometime people thought, so less people, I think something is wrong in this और church. कई बार लोगों ने सोचा इतने कम लोग, शायद कुछ गलत है इस कलीसिया के साथ. Not really. नहीं, We are going through pruning. हम सब छटाई से गुजर रहे हैं. But those who are here, God is interested to even make more fruitful. और जो यहाँ पर है परमेश्वर उनमें दिलचस्पी रखता है कि वो और फल लाए. Now, many people who moved were actually relocated. Don't worry, there was no any hidden story. और ऐसा कुछ छुपी हुई कहानी नहीं है. जितने भी लोग यहाँ से गए उन्हें नए स्थान पर स्थापित होना था, And it's fine. और ये ठीक है. But those who are here with us, और जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, God is about doing something new. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर And है. then Narayan read from 1 John. और फिर नारायण ने यूहन्ना 1 से पढ़ा Says, if you remain in my love, कि अगर तुम मेरे प्रेम में बने रहते हो you will be fruitful. तो तुम फल को लाओगे. You see, everything was about new, well-watered garden, fruitfulness, and something God is want to do new. और ऐसे हर एक चीज बगीचे के बारे में, फल लाने के बारे में और कुछ नया कर रहा है परमेश्वर उसके बारे में. And I had already prayed for ADC. और मैंने पहले से ही एडीसी के लिए प्रार्थना कर And I रखी थी. came to that meeting having Luke 5 from the Lord. और मैं वहां पे उस मीटिंग में आया लूका 5 लेकर. And you see, this is what the word, how the actual prophetic, the genuine prophetic works. और ऐसे ही जो भविष्यवाणियां कार्य करती हैं It's always in the line. वो हमेशा एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. So God said, I want to do something new. कि परमेश्वर कहते हैं मैं कुछ नया करना चाहता I हूँ. will pour out new wine. मैं एक नई दाखरस को उंडेलूंगा, But new wineskin is needed. पर नई मशकों की जरूरत है. I'm going to do something new. मैं कुछ नया करने पर हूँ, But I need
new wineskin. पर मुझे नई मशकों की जरूरत है। God wants to do something new in 2026. परमेश्वर 2026 में आपके लिए कुछ नया करना चाहता है And it applies to you individually और वो first. आप में से हर एक के लिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ नया करना चाहता है। But it doesn't mean it's just about you and God. और इसका अर्थ ये नहीं है सिर्फ आपके और परमेश्वर के बारे में है, But God has also placed you in this body. पर परमेश्वर ने आपको इस शरीर का हिस्सा बनाया है। So your life also matters. तो आपका जीवन जो है वो मायने रखता है। You know, you have a participation in the larger body. और जो परमेश्वर का बड़ा शरीर है उसमें आपका एक हिस्सेदारी है। Jesus has never called you to live life alone between you and relationship with Jesus. और यीशु मसीह ने सिर्फ आपको एक अकेले का जीवन गुजारने नहीं बुलाया कि वो आपके और यीशु मसीह के बीच में हो। If that was it, then he wouldn't place you in a church. और अगर ऐसा होता तो वो आपको एक कलीसिया में कभी नहीं लाता, And so he wants to do something new in your life, बल्कि वो कुछ नया करना चाहता है आपके जीवन में, but requires new wineskin. पर हमें नई मशकों की जरूरत है। He wants to make you even more fruitful, वो आपको और फलवंत बनाना चाहता है, but requires pruning. पर आपकी छटाई की जरूरत है। It is those who make themselves available for God. और वही लोग जो अपने आप को मौजूद बनाते हैं परमेश्वर के लिए, They say yes to the word of the Lord. और वो परमेश्वर के वचन के लिए हाँ बोलते हैं, God says, great, I can do something in you and through you. और परमेश्वर कहता है बहुत ही अद्भुत, मैं तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे अंदर कुछ नया कर सकता हूँ। So the reason Jesus said this about new wineskin, और ये बात जो यीशु मसीह ने बोली मशकों के बारे में, because this group of people, Pharisees and teachers of the law, और जो वहाँ पे फरीसी लोग थे और जो व्यवस्था को सिखाने वाले थे, were not open to receive new. वो कभी भी खुले नहीं थे कि वो नई चीज को अपना सके। Jesus was completely moving in a new power, यीशु मसीह पूरी तरीके से एक नई सामर्थ में बढ़ रहा a था, new anointing. वो एक नई अभिषेक में बढ़ रहा था। How many of you still want the old 2025? आप में से कितने 2025 का पुरानापन चाहते हैं? Even those who had the great year will not put their hands. जिनका साल बहुत ही अद्भुत भी रहा होगा वो भी अपने हाथों को नहीं उठाएंगे। Am I right? क्या मैं सही हूँ? If you really want new, अगर आप सच में कुछ नया चाहते हैं, starts with partnering with Jesus. वो शुरू होता है यीशु मसीह के साथ साझेदारी में The जुड़ने से। Pharisees and the teachers of the law और जो फरीसी और व्यवस्था को सिखाने वाले थे, were not embracing the new, वो नएपन को अपना नहीं पा रहे but थे, they were rejecting it. बल्कि वो उसका तिरस्कार कर रहे थे, उसे ठुकरा रहे थे। If you know little bit about this group, अगर आप थोड़ा बहुत इस समूह के बारे में जाने you read scripture, you'll find a lot what was going in them. और आप अगर वचन को पढ़ेंगे, आप जानेंगे बहुत कुछ जो उनके अंदर चल रहा था। What was the reason for Jesus to tell this parable? और क्या वजह थी यीशु मसीह ने ये दृष्टांत सुनाया? Look at the whole chapter. अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ें, Jesus heals a man with leprosy. यीशु मसीह एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करता है। In those days, leprosy affected person cannot come certain cubits in front of certain people. और जो कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति होता था उस समय में, वो लोगों से बहुत कुछ दूरी पर ही रहता था। If you read this chapter when you go home, अगर आप ये अध्याय को घर जाकर पढ़ेंगे, this leper comes before Jesus और ये कोढ़ी यीशु मसीह के सामने आता है and Jesus heals him. और यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। But you should pay attention. पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। Jesus did not heal him from far. यीशु मसीह ने उन्हें दूर खड़े होकर फासले से चंगा नहीं It किया। is said that he touched him. वो वचन कहता है कि उसने उसे छू कर चंगा And किया। I can only imagine he didn't only touched him, but he embraced. और मैं ये सोच सकता हूँ कि उन्हें सिर्फ उसे छुआ नहीं, बल्कि उसे अपने बाहों में भरा हो। This new love, nobody could accept. ये so नया प्यार कोई इतनी आसानी से नहीं अपना सकता, because the world system, the structure was so rigid and harsh. और बल्कि जो उस सब की व्यवस्था थी, वो सारे बातें थी, वो सब उनके अंदर ऐसे ठोस बना रखा था उन्हें। Sin was so prevalent that it had become hard. बल्कि पाप इतना ज्यादा था कि उन्होंने उनके हृदय को पत्थर बना रखा था। And it said there, if you read your Bible, the news spread all over. बल्कि आप अगर अपने वचन को
पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है कि वो नयापन फैलता गया। Surely the news went to the teachers of the law and the Pharisees. और जरूर है कि वो फरीसियों तक वो खबर और व्यवस्था के सिखाने वाले तक वो जरूर पहुंची How होगी can Jesus touch a leprosy affected? कि यीशु मसीह कैसे कोढ़ी व्यक्ति को छू सकते We हैं। have a law about it. हमारे पास एक व्यवस्था है उसको We लेकर। look at the Old Testament. अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में है। And so they kept coming with questions to तो वो trick Jesus. कई सवालों को लेकर आते थे यीशु मसीह को फंसाने के लिए। It's interesting in verse 16 if you read, अगर आप वचन 16 पढ़ते हैं, it is said, but Jesus often withdrew himself to pray. और आप देखेंगे कि वो कहता है यीशु मसीह कई बार सबसे अलग होकर प्रार्थना करने Some जाते थे। translation would say Jesus would often withdraw himself in lonely places. और वो कहते थे कई बार यीशु मसीह अकेली जगहों पर जाते थे। So their teachers and the Pharisees, और तो वो जो फरीसी और व्यवस्था को सिखाने वाले थे, coming with an external religion, वो बाहरी धर्म के साथ तो आते थे, questioning Jesus's religiosity. वो यीशु मसीह की धार्मिकता पर सवाल उठाते थे। The next question comes. तो अगला सवाल आता है John's disciples are fasting, कि यूहन्ना के जो चेले हैं वो तो उपवास रख रहे हैं, but your disciples are not fasting. पर जो तुम्हारे चेले हैं वो उपवास नहीं रख रहे हैं। See, they are lording it over. वो उस जो सारी रीति रिवाजों का उसके ऊपर बोझ की तरह ला रहे थे। They are very religious, वो बहुत ही धार्मिक हैं very pious. और वो बहुत ही सिद्धता से चलना चाहते हैं, But Jesus knows hearts. पर यीशु मसीह हृदयों को जानता है। See, so same thing in the Old Testament. और वही चीज पुराने नियम में है। For man looks at outward, यीशु जो मनुष्य है वो बाहरी तौर से देखता है, God looks at heart. पर परमेश्वर हृदयों को देखता है। If you just research on Pharisees and the teachers of the law, अगर आप सिर्फ फरीसियों और व्यवस्था को सिखाने के बारे में पढ़ेंगे, Jesus doesn't mind questioning. यीशु मसीह को कोई परेशानी नहीं है अगर आप उनसे सवाल करें, Their hearts, they were thinking something from hard-hearted heart. बल्कि वो अपने पत्थर के हृदयों से कुछ चाहते थे। They question why you are eating with sinners. वो कहते तुम पापियों के साथ क्यों खाना खाते हो। Verse 30. वो 13वें वचन में Verse कहते हैं, 33, I said, your disciples are not fasting. और 33 वचन कहता है कि तुम्हारे चेले उपवास नहीं रख रहे हैं। They were asking this from hardened heart. वो अपने ठोस हृदय से ये सवाल पूछ Look रहे at हैं। verse 22 quickly, और आप जल्दी से 22वें वचन को पढ़ें। which says, why are you thinking these things in your heart? और यीशु मसीह कहता है तुम ये सारी बातें अपने हृदय में, अपने मनों में क्यों सोचते हो। Why are you thinking in your hearts? क्यों आप अपने मनों में ये सारी बातों का विवाद कर रहे हैं। Jesus, thinking happens in mind. Why are you saying about the heart? तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि हम तो अपने दिमाग से सोचते हैं, तो परमेश्वर मन की बात क्यों कर रहा है। Church, there is a certain kind of thinking that happens from the heart. और एक तरीके की सोच है जो मन से आती है। Ponder on that. आप उसके बारे में सोचें। Therefore, Jesus communicates them this wisdom through this parable. और इसलिए यीशु मसीह ये ज्ञान उनको देते हैं इस दृष्टांत के द्वारा। Can you say after me, no one? आप क्या कह सकते हैं मेरे साथ कोई नहीं। No one, can you say no one? तो आप कह सकते हैं कोई नहीं। No one sews a new patch into old clothes. वो कहते हैं कोई भी पुराना कपड़ा नए कपड़े में नहीं लगाता। You would also not do that. आप भी ऐसा नहीं करेंगे। Jesus' wisdom, God's wisdom is highest. पर यीशु मसीह और परमेश्वर की बुद्धि सबसे उत्तम He है। will not sew a new into an old. वो कहता है कि तुम पुराने वस्त्र को नए वस्त्र में नहीं I पिरोगे। love the scripture because it has so much depth. और मुझे ये वचन इतना पसंद है क्योंकि इसमें इतनी गहराई है। It says new doesn't have a match with old. वो कहता है क्योंकि जो पुराना वस्त्र है वो नए वस्त्र से मेल नहीं खाएगा। Similarly, no one pours new wine into an old wineskin. और वो कहता है वैसे ही कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। New wine will burst the wineskin, और जो नया दाखरस है वह पुरानी मशकों को फाड़ देगा। but they pour new wine into new wineskin, बल्कि वो नई दाखरस को नई मशकों में भरते हैं so that both are preserved. क्योंकि दोनों सही रहें। Therefore, if we interpret this truth, और अगर हम इस सत्य का अनुवाद करते हैं it's very simple. वो बहुत ही सामान्य है New cannot match with old. कि नया पुराने के साथ मेल नहीं खा सकता New cannot be together with the old. और नया पुराने के साथ रह नहीं सकता। For old will ruin the new, क्योंकि जो पुराना है वो नए को भी नष्ट कर देगा and both are destroyed. और दोनों खराब हो जाएंगे।
Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? What is new wine और क्या है नया दाखरस? and what is new wineskin? और क्या है नया मशक? New wine signifies Jesus' grace. और जो नया दाखरस है वो यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है, Signifies his teachings. वो दर्शाता है उसने जो सिखाया, Signifies his kingdom. और वो उसके राज्य को दर्शाता है। Jesus was doing these new things, यीशु मसीह ये नई सारी चीजें कर रहे थे, healing in such way that never happened before. ऐसी चंगाई को ला रखे थे जो पहले कभी नहीं देखी गई, His kingdom is of power. और जो उसका राज्य था वो सामर्थ का था। You see, new wine has a fermentation power. और जो आप देखेंगे जो नया दाखरस होता है उसके अंदर सड़ाने की सामर्थ होती है। And God is saying to ADC, तो जब यीशु मसीह एडीसी से बात कर रहा है, he's saying, I want to use you in a new power. वो कहता है मैं तुमको एक नई सामर्थ में इस्तेमाल करना I चाहता want to हूँ, give you new power. मैं तुमको एक नई सामर्थ देना चाहता हूँ। Is anybody even interested to receive new power? क्या आप में से कोई दिलचस्पी भी रखता है उसे स्वीकार करने की? तो मैं हाथ देखना चाहता हूँ। Yes, few more hands going up. Yes. The new power will take you to new levels. और जो नई सामर्थ है वो आपको एक नए स्तर पर ले जाएगी। I always say Jesus doesn't come to make you a struggling Christian. और मैं हमेशा कहता हूँ कि यीशु मसीह आपको एक संघर्ष करने वाला मसीही नहीं बनाना चाहता। If you are a struggling Christian, then you need to go before God. और अगर आप संघर्ष करने वाले मसीही हैं तो आपको मसीह के सामने जाने की जरूरत है। But if you partner with Jesus, पर अगर आप यीशु मसीह के साथ साझेदारी we करते have हैं, seen it, हमने देखा है, not only in the early church, ना कि पुरानी कलीसिया में, पहली कलीसिया में, even in the church of 21st century, बल्कि हमारी 21वीं सदी की कलीसिया में God pours out new level of power, परमेश्वर एक नई स्तर की सामर्थ को देता है making weak ones strong. कि वो कमजोरों को सामर्थी बनाता है। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ADC, एडीसी, God wants to use you at new level. यीशु मसीह आपको एक नए स्तर पे इस्तेमाल करना चाहता है, God wants to give you a new power and authority. और परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ, एक नया अधिकार देना चाहता है। Some of us are not even anticipating. हम में से किसी को उसका इंतजार भी नहीं है, Some of us don't even want it perhaps. हम में से शायद उसको कुछ चाहते भी ना हो। Because we will come to the end. Those who love the old will not want new. और हम आखिरी जो वचन है वो कहता है कि जिनको पुराना पसंद है वो नया पसंद नहीं करेंगे। Please write down this scripture and memorize it. आप जरूर ये वचन को लिखकर याद करें। Proverbs chapter 4 verse 23 नीति वचन उसका 4:23 in New Living Translation. और हम ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। If we can put it on the screen, please put it. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. और यहाँ लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Guard your heart. अपने मन, सबसे ऊपर अपने मन की रक्षा कर। You see, some translation will use with all diligence. और कई अनुवाद में लिखा है कि पूरी सावधानी से। What is going in your heart? क्या चल रहा है आपके मन में? What is the thought in your heart? क्या ख्याल चल रहे हैं आपके मन What में? is the intent of your heart? आपके मन की इच्छा क्या है? There is a deadlier spirit that is ruining the 21st century church. और एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है जो 21वीं सदी की कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। This spirit is ruining believers and disciples. और ये वो आत्मा जो विश्वासी हैं और चेलों को नाश करने की कोशिश कर रही है। It's called Pharisaical spirit, और उसको हम कहते हैं फरीसियों की आत्मा, where people began with a good heart, good, relationship with Jesus. जहाँ लोग अच्छे हृदय से शुरुआत तो करते हैं, अच्छे रिश्ते के साथ शुरुआत करते हैं यीशु मसीह के साथ, Slowly they turn to a religion. पर धीरे धीरे वो धार्मिकता की तरफ चले जाते हैं, धर्म की तरफ चले जाते हैं। If you understand about Pharisees, अगर आप फरीसियों के बारे में समझें, you will understand this Pharisaical spirit, तो आप समझेंगे कि ये फरीसियों की आत्मा है क्या, which actually corrupts the heart. वो हमारे मनों को खराब करती है।
But look at the scripture. पर आप वचन को देखें, It's the heart that determines your discord. और जो आपका हृदय है वही चुनता है कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी. I often say whatever is in your heart must be outside. और मैं हमेशा कहता हूँ जो आपके मन में है वो हमेशा सामने होना चाहिए. Because if it's not the same, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, if it's not matching, अगर वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, one day what's in the heart will come out. तो एक दिन जो आपके मन में है वो सामने प्रकट हो जाएगा. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? The spirit is actually corrupting. It's like a virus corrupting the disciples. और वो एक वायरस के समान है जो चेलों को के अंदर खराबी लाती है. You are that new wineskin. और आप ही वो नई मशक हैं. We understood about new wine signifies Jesus' grace, His teachings, His divine power. हम नई दाखरस को समझते हैं, वो यीशु मसीह का अनुग्रह है, उसकी बातें हैं और उसका राज्य है. But He pours out these things into someone. पर वो उन सारी चीजों को किसी एक व्यक्ति में उंडेलता है. And that is called wineskin. और वो जिसमें उंडेलता है वो एक मशक है. If you can put that title slide, it had that picture of the wineskin. अगर आप टाइटल स्लाइड डाल सकते हैं और वो वाइन स्किन की पिक्चर को दिखा Those days सकते there हैं. was no bottles, और उस समय पे बोतलें नहीं हुआ करती थी, but they had that kind of, musk in Hindi they say, right? Wineskin. पर उनके पास मशक हुआ करती थी जिसको हम वाइन स्किन कहते हैं. Made with a leather. वो लेदर की बनी थी. We all wear leather, by the way. हम सब लेदर पहने होगा. It's still there, leather. अभी भी लेदर का इस्तेमाल होता है. It is made with animal skin. और वो जो जानवर की खाल से बनता है, Original leather. जो ओरिजिनल लेदर होता है. So they would pour this new wine like a grape juice in this. और वो नई दाखरस को इस मशक में उंडेलते थे. But the new wine will get ferment. पर जो नई दाखरस है वो सड़ता था, Naturally ferment. और वो स्वाभाविक रूप से सड़ता था Has power. क्योंकि उसमें सामर्थ है. Imagine it has power to even burst this skin. उसमें इतनी सामर्थ है कि जो मशक है वो फट भी सकती थी. So if the wine skin is old, तो अगर वो मशक पुरानी है then it will break very fast. तो वो बहुत जल्दी फट जाएगी. Therefore, a new wine skin goes through, old wine skin, to make it reusable, goes through a process. तो जो पुरानी मशक है उसको एक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता था कि वो एक नई मशक बन सके. We will look at that in a moment. और वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. But the old nature, पर जो पुराना स्वभाव है, old wine skin, जो पुरानी मशक है, speaks about our old nature. तो वो बात करती है हमारे पुराने स्वभाव के बारे में. Jesus pours the new grace. जो यीशु मसीह अपनी नई अनुग्रह को उंडेलता है. But if you still remain old, पर अगर आप फिर भी पुराने पद में हैं, there is no match. तो उसमें कोई मेल नहीं होगा. Jesus wants to do new things. यीशु मसीह नई चीजें करना चाहता है. If you still remain old nature, पर अगर आप पुराने स्वभाव में जी रहे हैं, He can't use you at that level. तो वो आपको उस स्तर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता. Who needs change? तो किसको बदलने की जरूरत है? It's you. वो आप हैं. It's you and I. वो आप और मैं हैं. It's us that needs to go through a renewal process. वो आप और मैं हैं जिन्हें नए बनने की प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा. He doesn't chuck you away. वो आपको दूर फेंक नहीं देता. In fact, when you and I meets with Jesus, बल्कि जब आप और मैं यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, how many of you can guarantee and say that He started doing new things in my life? आप में से कितने गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसने मेरे अंदर नई चीजें करना शुरू कर Can दिया? I see hands? क्या मैं हाथों को देख सकता हूँ? How many of you can say Jesus does new things? आप में से कितने कह सकते हैं कि यीशु मसीह नई चीजें कर रहा है? How many can say He did powerful things? आप में से कितने कह सकते हैं कि वो सामर्थी चीजें कर रहा है? He did powerful things. क्या वो सामर्थी चीजें करता है? Things that were out of your hands. जो आपके नियंत्रण में नहीं थी? Yes. हाँ, You saw the power of God in आपने your. परमेश्वर के सामर्थ को देखा है. That's new. वो नया है. He renews you. वो आपको नया बनाता है. Paul speaks about putting the old man and having a new man. ये पौलुस कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नया मनुष्यत्व So पहन. Jesus takes us on a journey. तो यीशु मसीह हमें एक सफर में ले जाता है. It's not one time event. वो एक बार का काम नहीं है. Finish. You are all the new एक person. बार हो गया और अब तुम नए बन गए.
but he wants you to take you to another level. पर वो आपको एक नए स्तर पे ले जाना चाहता है। Are you going to partner with him? क्या आप उसके साझेदारी में आएंगे? Or just that one time experience is enough? भैया आपका वो एक ही अनुभव काफी है। He had greater things planned. उसने आपके लिए बहुत बड़ी चीजें की योजना बनाई है। Many get settled. पर कुछ लोग बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं वहीं पे। Their life with Jesus begins well. उनका जीवन यीशु मसीह के साथ शुरू तो बहुत अच्छे से होता है, Slowly they take this route of religion. पर धीरे धीरे वो धार्मिकता का रास्ता चुन लेते हैं। If you know about Pharisees, अगर आप फरीसियों के बारे में जानते हैं, they started living to tick boxes. तो वो सारे फरीसी सिर्फ बॉक्सेस को टिक करने के लिए जीवन जी रहे थे। I went to pray today. आज मैं प्रार्थना करने गया था, I went to church मैं today. आज कलीसिया में गया था, And oh, that person didn't go. और वो व्यक्ति नहीं गया। Look at how horrible that person is. तो वो कितना बुरा व्यक्ति है, Very quickly they become judgmental. और वो बहुत ही जल्दी उनका न्याय कर देते They हैं। begin to work on externals, वो बाहरी रूप पे काम कर रहे हैं, but the hearts are far away. पर जो उनका हृदय है वो परमेश्वर से दूर है। So they live, firstly, they live to tick boxes. तो पहले वो बॉक्सेस टिक करने के लिए जीते हैं। I fasted. हाँ, मैंने उपवास भी रखा, I prayed. मैंने प्रार्थना भी की। They begin to work on legalistic relationships. वो रूढ़वादी बातों पे कार्य करते हैं, They're very legalist. वो बहुत ही रूढ़वादी होते हैं, You see, that kind of person, disciple, will become very judgmental. और वैसा चेला बहुत ही न्याय करने वाला चेला बन जाए। They offer lip service, but their hearts are far away. वो होठों से तो आराधना देते हैं, पर उनके मन परमेश्वर से दूर होते हैं। Number 3, their externals are really good, और तीसरी बात, उनके जो बाहरी रूप है वो तो बहुत अच्छा होता है, but internally nothing much has changed. और पर अंदरूनी रूप से ज्यादा कुछ बदला नहीं होता। A disciple of Jesus must change. एक यीशु मसीह का चेला जरूर से परिवर्तित होना चाहिए। If you were there last 2 Sundays ago, अगर आप पिछले 2 सप्ताह से पहले वाले संडे में थे, a place of challenge brings you to a place of change. जो संघर्ष की जगह है वो आपको एक परिवर्तन की जगह पे ले जाएगी। Yes, Dr. Shiju Matthews sermon, please listen to it on Spotify. और जरूर आप स्पॉटिफाई पे डॉक्टर सीजू का संदेश को सुने। A place of change will bring to place of triumph. बल्कि एक परिवर्तन की जगह फिर आपको एक विजय की जगह पर ले But जाएगी। their hearts not much change. तो उनके हृदय ज्यादा बदले नहीं होते। Such disciples you will find. ऐसे चेले आप जरूर पाएंगे, Such churches you will find. आप ऐसी कलीसिया भी पाएंगे। They are very good from outside, वो बहुत ही अच्छी लगेंगी बाहर से, but internally पर अंदरूनी रूप से all sorts of things. सारी तरीके की खराबी। Number 4, they measure from religious activities, but not relationship depth and maturity. वो अपनी धार्मिकता को मापते हैं धार्मिक रीति रिवाजों से, ना कि वो आत्मिक रूप से कितने परिपक्व हुए हैं। How much you prayed, आप कितना भी प्रार्थना करें, how much you read the Bible. आपने कितनी बाइबल पढ़ी है, They look at from externals. वो बाहरी रूप से गिनते हैं। Churches are like that. और कलीसियाएं ऐसी हैं। You know, a person can be very spiritual. आप जानते हैं एक व्यक्ति बहुत ही धार्मिक हो सकता है, बहुत ही आत्मिक हो सकता You है। see, they were questioning Jesus. It's interesting. Verse 16 made a comment. Jesus withdrew to lonely places and prayed. और वो यीशु मसीह से सवाल कर रहे थे, और 16वां वचन कहता है यीशु मसीह उनसे अलग होकर एक अकेली जगह पे गए। Not that Jesus did not have really, a pious life. ऐसा नहीं है यीशु मसीह का जीवन दिखावे का था, But these guys, they do pious life for others to be seen. बल्कि वो दिखावे का जीवन जीते थे जो दूसरों को दिखाना चाहते थे। Believers fall into that category. और कई बार विश्वासी लोग उस समूह में आ The जाते हैं, Pharisaical spirit is really destroying churches, और वो फरीसियों वाली आत्मा कई कलीसिया को नाश कर रही है। allowing the new to flow. वो एक नएपन को बहने नहीं दे रही है, It's rejecting वो- what Jesus wants to do. वो ठुकरा रहे हैं जो यीशु मसीह उनमें करना चाहते हैं। And this is people who are caught up in these kind of things. और ये वो लोग हैं जो इन सारी चीजों में फंसे हुए हैं। They place high emphasis on anointing but not character. वो बहुत ही ज्यादा जोर डालते हैं अभिषेक पर वो स्वभाव या चरित्र पर नहीं ध्यान देते। You see, you look at YouTube, look at what's going on in Christian world. अगर आप YouTube पे देखेंगे मसीहियों के जीवन में क्या चल रहा है, People are crazy after running after anointing. कई लोग पागल हैं अभिषेक के पीछे दौड़ने के लिए, Crowds can gather in those places. और वहां पे भीड़ें इकट्ठा हो जाती हैं, But there's never a mention about
Is there any change in you? पर वो कभी ये नहीं पूछते कि क्या तुम्हारे चरित्र में कोई परिवर्तन आया। It's all about healing. वो सब चंगाई के बारे में It's है, all about miracles. वो सब आश्चर्य कर्मों के बारे में है। Some of them, they don't even know whom they are following. और कई लोगों को ये भी नहीं पता वो किसके पीछे चल रहे हैं। Those high personified, so-called men and women of God, और वो जो बड़े बड़े दिखने वाले परमेश्वर के लोग हैं, स्त्री और पुरुष हैं, what's their character? उनका चरित्र कैसा है, How are they after the stage? वो कैसे हैं जब वो स्टेज से उतर No जाते one हैं, can reach to them. कोई उन तक नहीं पहुंच सकता। In that crowd, उस भीड़ में there is no speaking about new wineskin. कोई उस नई मशक के बारे में बात नहीं See, करता। this process that I want to introduce to you, और ये जो प्रतिक्रिया है जिसका मैं परिचय करवाना चाहता it's हूँ, called discipleship process. वो है चेले बनने की In प्रतिक्रिया। crowds, never discipleship is done. और जो भीड़ है उसमें कभी चेले नहीं बनाया जा सकता। You read your Bible, you'll find it. अगर आप अपने वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, But it's in the electing of few and taking them on journey with Jesus is discipleship. बल्कि वो है कि जब हम कुछ लोगों को चुनते हैं और उनको एक सफर में ले जाते हैं मसीह के साथ, उसको चेला बनाना कहते हैं। The Pharisaical spirit began to constantly compare. और जो फरीसियों की आत्मा है वो हमेशा तुलना करती रहती है। See, that's why John's disciples are fasting. तो वो कहते देखो यूहन्ना के चेले तो उपवास रख रहे हैं, You are not yourself. तुम उपवास नहीं रख रहे हो। Instead of placing ourselves before the measure of God, इससे पहले हम यीशु मसीह के माप के सामने अपने आप को खड़ा करें। they're always looking at others. वो हमेशा दूसरों को मापते हैं। You see, our reference point is our cross upward. और हमारा जो मापने का जो जगह है, स्तर है, वो हमारा क्रूस है ऊपर की तरफ, Not the horizontal. ना कि दाएं बाएं। We don't look at other believers say अच्छा वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हम दूसरे विश्वासी को देख के नहीं कहते हैं ओ इफ दिस पर्सन इज डूइंग दिस देन आई विल डू हूँ. दैट। Our reference point, what would Jesus do? बल्कि हमारा जो मूल स्रोत है वो यीशु मसीह है कि यीशु मसीह क्या करते, How would he speak? क्या वो कैसे बात करते, Would he be judgmental? क्या वो उनका न्याय कर देते। These were the same group wanted to take the first stone and hit that adulterous woman. और ये वही लोग हैं जो सबसे पहला पत्थर उठा के उस व्यभिचारी स्त्री के ऊपर मारना And चाहते थे। Jesus got to the heart. और यीशु मसीह हृदय तक पहुंचे। The group doesn't want accountability. वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको लेखा दे। The Pharisees didn't want accountability. आप फरीसी नहीं चाहते थे कि उनका लेखा लिया जाए। They found faults in others. वो दूसरों में कमियां ढूंढते थे। They were always critical. वो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते थे। You know critical spirit? क्या आपको पता है कमी ढूंढने वाली, Always finding faults. वो हमेशा कोई ना कोई गलती ढूंढते हैं। Always looking at negative. वो हमेशा नकारात्मक चीजों पे ध्यान देते हैं It's very dangerous. और ये बहुत ही खतरनाक है। And list goes on and on. And और ये बहुत ही लंबी सूची है उनके स्वभाव की। Such believers has dual worlds. और ऐसे जो विश्वासी हैं, उनके दो दुनिया होती हैं। Dual worlds. वो दो दुनिया में रहते They हैं। are good on Sundays. वो संडे को तो बहुत ही They अच्छे put होते हैं। up their best on Sunday. वो अपने सबसे उत्तम दिखते हैं संडे They को। live life in circles. और पर वो एक चक्र में अपना जीवन बिता रहे They हैं। have a circle called Jesus circle. और उनके चक्र का नाम है यीशु मसीह का चक्र। When they come to that circle, they have very good. और जब वो उस चक्र के अंदर आते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। Then why to take Jesus circle on career circle? तो हम उस अब यीशु मसीह के चक्र को अपने करियर चक्र में क्यों ले जाएं? Jesus was in 22,000 years ago. Na, he didn't have career. और यीशु मसीह तो 2000 पहले थे ना, तो उनका तो कोई करियर था नहीं। That circle I can live on my own. और वो चक्र में अपने हिसाब से जी And सकता। why to take the circle of business? Jesus did not do business. और व्यवसाय के चक्र में यीशु मसीह को ले जाने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह तो व्यवसाय How नहीं would करते थे। Jesus understand my world? यीशु मसीह कैसे मेरे व्यवसाय को समझेंगे? After all, my tradition and culture are different than Jesus's. और वैसे भी मेरी संस्कृति और रीति रिवाज तो यीशु मसीह के संस्कृति रीति रिवाज से अलग है। When it comes to marriage, it's about Indian tradition, no? और जब हम शादी की बात करते हैं तब तो हमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से चलना है ना। Jesus doesn't understand Indian culture. यीशु मसीह भारतीय संस्कृति नहीं समझते, See, they begin to have different circles. तो वो अलग अलग चक्र में अपना जीवन बिताते हैं। They do very well with this circle on Sunday, and और वो यीशु मसीह चक्र में बहुत अच्छे होते हैं संडे को। and they're not placed
Jesus at the center of every circle. पर उन्होंने यीशु मसीह को केंद्र में नहीं रखा होता है हर एक चक्र के। Because if only you place Jesus at the center of every circle, क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके हर एक चक्र के केंद्र में होते, he brings balance. तो वो संतुलन लेकर आते हैं, He brings peace. वो शांति को लेकर आएंगे, He brings order. वो हर एक चीज व्यवस्था के रूप से होगा। And if you brought him, और अगर आप उन्हें लेकर आते हैं, he challenges culture. तो वो हमारे संस्कृति को अब चुनौती He देता है, challenges tradition. वो हमारे रीति रिवाजों से चुनौती He करता है, challenges behavior in your business. वो आपका स्वभाव की चुनौती करता है जब आप व्यवसाय में हैं, Challenges your character. वो आपके चरित्र को चुनौती में डालता है। Are you listening to me? क्या आप समझ रहे हैं? So then, new wineskin has to go through a new process. तो इसलिए एक नई मशक को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। Now, when they would have this old wineskin, can you show that picture, which has become very hard? It और has a अगर crack. वो अभी भी पुरानी मशक बने हुए हैं, This wineskin is not thrown, but it goes through a renewal process to make it like that. वो पुरानी मशक को फेंक नहीं दिया जाता, उसको एक प्रतिक्रिया से ले जाया जाता है कि वो एक नई मशक बन So सके। what would they do? तो वो क्या करते हैं? They will take this wineskin, तो वो पुरानी मशक लेते हैं, they'll remove of the old. They'll remove of the old. और वो पुरानी सारी उसमें जो भी चीजें होती है उसको हटाते हैं, They will soak it in the water वो पानी में उसे डुबोए रखते हैं for hours, घंटों तक, for days, बहुत दिनों तक, for it to become softened, कि वो मुलायम हो जाए, for it to become again new. कि वो फिर से नई बन जाए। They will take time, तो वो अपना पूरा समय लेते हैं, and then at particular time, तो एक नियुक्त समय पर, they will dry it before the sun. और उसके बाद वो उस मशक को सुखाते हैं धूप में, And then after certain time, और फिर कुछ नियुक्त समय बाद the wineskin has become moldable, soft. अब वो जो मशक है वो मुलायम हो गई, आप जैसा आकार देना चाहते हो उसे वैसा आकार भी दे सकते हो। After water is dried off, it will be put by oil. और फिर जब वो पानी सूख जाएगा तो उसमें तेल लगाया जाता है, They will polish it with oil. और उसको पॉलिश किया जाता है तेल से, They'll keep rubbing it with the oil. और फिर वो उसको मलते हैं तेल से, And then the new wineskin will be ready. और फिर आपकी नई मशक तैयार हो जाती है, Again ready to be stretched. और फिर से अब आप उसको खींच सकते हैं। Similarly, और वैसे ही if you and I are the new wineskin, अगर आप और मैं एक मशक हैं, we ought to get rid of old. तो हमें पुरानेपन को वापस पीछे छोड़ना It होगा, requires a process. तो हमें एक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है। If God wants to use us mightily, अगर यीशु मसीह हमें महान रूप से इस्तेमाल करना चाहता है, ADC, you and I all have a part to play. तो आईडीसी आप और मेरा एक कार्य है, हमारा एक हिस्सा है जो हमें पूरा करना Each होगा। of you plays an important role. आप में से हर एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है उसके लिए। If you read Ephesians chapter 5, अगर आप इफिसियों उसका 5 पढ़ें, what does water signify? तो पानी किस चीज को दर्शाता है, Look जल at किस verse चीज को चिल्लाता है? 26, अगर आप 26वां वचन पढ़ें, which says that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water, which is the word of God. वो कहता है कि वो उन्हें शुद्ध करता है और पवित्र बनाता है धोने के द्वारा, जो है जल से। Underline the word. तो आप इस शब्द को अंडरलाइन कर सकते हैं। In the Bible, water signifies the word of God. जो बाइबल है उसमें जो जल है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। For a long time, people thought when Jesus says to Nicodemus, you should be born again out of water and born again out of spirit. और कई बार बहुत समय तक जब निकोदेमुस से यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्मना है पानी और आत्मा के द्वारा, We all thought water baptism. तो हम सब सोचने लगे कि वो जल का बपतिस्मा है। If you are baptized in water and hopefully you will be baptized in the spirit, you are new. अगर आप जल में बपतिस्मा ले चुके हैं, आत्मा में बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आप नए हो गए हैं। You know, many baptized Christians are still living old life क्या आपको पता है कितने बपतिस्मा लिए हुए मसीही लोग अभी भी पुराना जीवन because जी they रहे हैं? are not understood being born out of water
is being born out of word of God. वो ये नहीं समझ पाए हैं कि जो है जल से नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ है वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म लेना। We got to renew ourselves through the word of God. हमें अपने आप को नया बनाना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। ADC, my fears and worries. ये एडीसी मेरी जो चिंताएं हैं For us as a church, एक कलीसिया के लिए, that we don't become like Pharisees, कि हम फरीसी लोगों जैसे ना बन जाएं, that we are very good from outside, कि हम भारी रूप से बहुत अच्छे हैं, a very beautiful church, एक बहुत ही खूबसूरत कलीसिया, but inside there's no word of God. पर अंदर हमारे कोई परमेश्वर का वचन ना हो, There's no discipleship. ना कोई चेला बनना चाहता हो, There's no one really, giving our best to Jesus, कि हम अपना सबसे उत्तम नहीं दे पा रहे हैं यीशु मसीह to को, live by the word of God. कि हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हों। He wants to cleanse us from His word. वो हमें अपने वचन के द्वारा शुद्ध करना चाहता है, That's what we were singing. और यही बात हम गा रहे थे। Psalms 51, Aditya was sharing. और भजन संहिता उसका 51 आदित्य बांट रहे थे। To cleanse our guilt conscious, sinful conscious. वो कहते हैं हमारे दोषों को आप शुद्ध कर दें, धो दें। Guilt and sinful conscious can still be sin. और जो हमारे दोष है और अधार्मिक सोच है वो अभी भी पाप हो We सकता can है। be at church, हम कलीसिया में हो सकते हैं, still have a heart that is far. पर ऐसा हृदय रख सकते हैं जो मसीह से दूर हो। We can call ourselves Christian, हम अपने आप को मसीही बुला सकते हैं, but still our hearts Jesus can reveal. और फिर भी यीशु मसीह हमारे हृदय को प्रकट कर सकते हैं उसमें क्या है। Are you listening to me? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? ADC should not become Pharisee, मैं नहीं चाहता कि एडीसी फरीसी लोगों के समान बने, hypocritical, वो दोहरी जीवन जिए, judgmental, वो न्याय करने वाले बने, high religiously from outside, अब बाहर से बहुत धार्मिक दिखे but inside is hollow. पर अंदर से खोखले हों। So how does this washing takes place? तो कैसे ये धोया जाना कार्य करता है? Soaking yourself in the word. कि आप अपने आप को वचन में भिगो कर रखें। Are you soaking yourself in the word? क्या आप अपने आप को भिगोए रखते हैं वचन में? Are you opening your Bible daily? क्या आप रोज अपने वचन को खोल के पढ़ते हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? This word will soften your heart. ये जो वचन है आपके हृदय को मुलायम Your बनाएगा। heart gets hardened. अगर आपका हृदय ही ठोस हो जाए, Sin hardens your heart, जो पाप है वो आपके हृदय को ठोस बनाता है, making you all sorts of things. तो वो आपको और अलग अलग चीजें बना देगा। Not only ruining your walk with Jesus, ना कि सिर्फ आपका जो सफर है मसीह के साथ जो चाल चलन है वो खराब होगा, calling and ministry, आपकी जो बुलाहट और जो सेवकाई है उसको भी खराब करेगा, your God-given purpose. और परमेश्वर का दिया हुआ उद्देश्य को खराब करेगा। Slowly, instead of making church, you start ruining church. आप धीरे धीरे कलीसिया बनाने की जगह कलीसिया खराब करने लग जाएंगे। Don't work on your heart. अगर आप अपने हृदय में कार्य ना करें, If you read your Bible, will enable you to work on your heart. अगर आप अपने वचन को पढ़ते हैं तो वो आपको बनाएगा इस लायक कि आपका हृदय को मुलायम हो सके। It's not the hearer but doer that is God looking for. और परमेश्वर सिर्फ सुनने वालों को नहीं ढूंढता पर करने वालों को ढूंढता है। He's not just listening or hearing, but the ones who practice this word are called wise builders. तो वो सिर्फ नहीं जो सुनते और उसे पढ़ते हैं बल्कि उसके अनुसार चलते भी हैं, परमेश्वर उन्हें बुलाता है। Want to build their life upon the word of God. जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, Will never be shaken. वो कभी भी हिलाए नहीं जा We सकते। live in such dark times. वो ऐसे अंधकार के समय में भी You रहेंगे। pick up newspaper. वो आप अखबार उठा के देख लीजिए, So many things are happening. बहुत सारी चीजें हो रही हैं। We live in the dark times. हम बहुत ही अंधकार के समय में हैं। If you don't build your life upon the word, अगर आप वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना रहे, a small storm can destroy it. एक छोटी सी आंधी उसको नाश कर सकती You है। are to soak in the water. आपने अपने आप को भिगोए रखना है वचन में। Jesus said, John 15:3, you are already clean because the word that I have spoken to और you. लूका कहता है 15 उसके 3 में कि तुम पहले से ही शुद्ध कर दिए गए हो। Yet some people are so busy. फिर भी बहुत लोग बहुत ही व्यस्त हैं, No time for the word. उनके पास वचन के लिए समय नहीं है। You know, we never push people to get you by holding your ears like this. हम कभी भी लोगों पे दबाव नहीं डालते उनके कान पकड़ के, Even at church. कलीसिया में भी। Because if we did, you will only come for us. और अगर हमने ऐसा किया आप हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे।
There is no one in this church gets a message right after Sunday. Oh, I from pastor. Oh, I didn't see you. और आप में से कोई नहीं होगा जिसको एक मैसेज ना मिलता हो संडे के बाद कि तुम कलीसिया में नहीं आए थे आज। How many of you can put your hands? Have I ever messaged you? आप saying, कितने हाथ उठा के कह सकते हैं कि मैंने कभी भी आपको मैसेज करा या कहते हो कि तुम कलीसिया में नहीं or आए? why are you not coming to church? कि क्यों तुम कलीसिया में नहीं आ रहे हो? Look, you are accountable your life with Jesus. देखिए, आपका जीवन का लेखा आपको मसीह को देना है। He is gonna ask you, वो आपसे पूछेगा, what have you done with your life? वो पूछेगा कि तुमने अपने जीवन के साथ You क्या come किया। to church for your relationship with Jesus. आप कलीसिया में अपने रिश्ते के लिए आते हैं जो आपका मसीह के साथ है। If I were to get you by something, अगर मैं आपको दबाव दे के यहाँ बुला भी लूं, I can gather crowd by selling ice cream. मैं भीड़ को इकट्ठा कर सकता हूँ आइसक्रीम बेच के भी, If I just were to gather a crowd. अगर मुझे भीड़ चाहिए ही होगी तो। But Jesus is interested in disciples. पर यीशु मसीह चेलों में दिलचस्पी रखते हैं। Many of us हम में से बहुत हैं, get into this kind of spirit, हम इस आत्मा में कार्य करने लगते हैं। allowing these 3 C's. Can you write it down? क्या ये 3 सी जो हैं उनको अनुमति देते हुए? Complacency, वो है जहां पर आप हैं उसी में ठीक खुश रहना, compromise, और वो है कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता करना, comfort. और वो है आराम का मैं तो जीवन। ऐसे ही हूँ, आई एम लाइक दैट ओनली। मेरे में कहाँ चेंज होगा? व्हाट वुड चेंज इन मी? अरे जीसस भी चेंज नहीं कर सकता। Yes, यस, because comfortable, क्योंकि हम बहुत ही आराम में आ गए हैं। compromise, हम समझौता करने लगे हैं। complacency. हम संतुष्ट हैं हम जहाँ पर भी These हैं, are the starting point. और ये सिर्फ शुरुआत की जगहें हैं। I really wanted to go very hard, और मैं बहुत ही कठिन बातें बोलना चाहता था, but somehow I always take the softer side. पर मैं कई बार उसे थोड़ी मुलायम जगह पे ही ले जाता You हूँ। know, those who love you corrects you. जो आपसे प्रेम करते हैं वही आपको सुधारते हैं। Those who don't love you, they will never correct you. जो आपसे प्रेम नहीं करते वो आपको कभी नहीं सुधारेंगे। They say you can get on like this. You will only. जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो। The love changes you. और जो प्रेम है वो आपको बदलता है। As a pastor, I love you. और एक पासबान के नाते मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। Pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता I हूँ, want to see newness happening in your और life. मैं चाहता हूँ आपके जीवन में नयापन आए, You thriving at new level. आप एक नए स्तर पर पहुंचे। But how will that happen? पर ऐसा कब होगा? If you don't position yourself, अगर आप अपने आप को उस स्थान पर ही नहीं you रखेंगे, don't give yourself. अगर आप अपने आप को देंगे ही नहीं। People are very busy with many other things, और लोग बहुत ही व्यस्त हैं और चीजों के साथ, but they are not wanting to come to Connect Group. पर वो कनेक्ट ग्रुप में नहीं आना चाहते हैं। We are not going to force you. हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, It's up to you. वो आपके ऊपर है। But if you don't grow, पर अगर आप बढ़ोतरी नहीं करते, you are accountable before Jesus. आप यीशु मसीह के सामने अपना लेखा देंगे। Anyone doesn't grow और अगर नहीं is बढ़ता, an abnormal spiritually. और जो समान रूप से नहीं बढ़ता वो हमेशा असामान्य We होता as है। a church just comes alongside to you हम एक कलीसिया होने के नाते सिर्फ आपके साथ चलते हैं to see you become matured and strong believers. कि आप एक परिपक्व और एक सामर्थी विश्वासी बन सके। Whatever time you are in Dehradun, और जब तक आप देहरादून में रहेंगे, we've done that हमने ऐसा किया है at many levels. और कई स्तर पर। Those who left us has given the same witness. और जो हमें छोड़कर यहाँ से गए भी, उन्होंने भी यही गवाही दी है। We are not saying we're going to be forever here. हम ये नहीं कह रहे कि आप हमेशा के लिए यहीं पर हैं, Whatever time you are here, पर जितने समय के लिए आप यहाँ पर make हैं, it a count. तो आप उसे उसके मायने के We are लायक not a बताएं। perfect church. हम एक सिद्ध कलीसिया नहीं है, There is no perfect church. और कोई सिद्ध कलीसिया नहीं है, There is no perfect leader. और ना ही कोई सिद्ध अगुवा है। But as long as we are submitting to the word of God, पर जब तक हम परमेश्वर के वचन में समर्पण we have करते हैं, passion for the word of God. हमारे अंदर जज्बा होता है परमेश्वर के वचन के लिए, It's a sign that we are moldable. तो ये एक चिन्ह है कि हमें आकार दिया जा It's सकता a है। sign that we are soaked in the water, इसका चिन्ह है कि हम जो जल है उसमें भिगोए गए हैं, going through that renewal process. और हम वो नए बनने की प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं। I would do anything to get to a meeting. और मैं कुछ भी करूंगा एक सभा में जाने के लिए। If they spoke from the same passage, I want to find what is new there for me. अगर वो वही पुराने वचन से भी बोलेंगे, मैं ढूंढना चाहता हूँ मेरे लिए क्या नया रखा है I उसमें। don't worry who's preaching. और मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रचार करने वाला I है। know
God can speak through donkey. और मैं जानता हूँ परमेश्वर गधे के द्वारा भी बात कर सकता है, Surely God can speak to me. तो परमेश्वर जरूर से मुझसे बात कर सकता I है। don't go around gifts. और मैं सिर्फ उपहारों के पीछे नहीं जाता, I go around character. बल्कि मैं चरित्र के पीछे जाता I हूँ। want to build ADC as a mature disciple. और मैं कलीसिया को बढ़ाना चाहता हूँ एक परिपक्व मसीही विश्वासी बनके। Are you giving yourself to the process? तो क्या आप अपने प्रतिक्रिया के लिए अपने आप को दे रहे हैं, Or you are settled? या आप संतुष्ट हैं जहाँ पर आप Or comforted? आप बहुत ही आरामदायक हैं। मैं तो ऐसा ही हूँ. आई एम लाइक दैट ओनली। Even Jesus can't change me. तो फिर तो यीशु मसीह भी आपको नहीं बदल सकता। We will look at the part 2 again in next Sunday. और हम अगले संडे पार्ट 2 को सुनेंगे, Because we can't finish all. और क्योंकि हम सब कुछ अभी नहीं बता सकते। ADC, I want to encourage you. और एडीसी में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ Let us work from within. कि हम अंदरूनी रूप से कार्य करें, Cleanse me from within. कि मुझे अंदर से शुद्ध कर, Refiner fire. कि मुझे आग के द्वारा ताया जाए। You see, there will be fire. देखिए वहाँ आग तो जरूर होगी, Will test everyone's work. वो हर एक को जांचेगी कि उनका कार्य कैसा है। Please make it with precious stones. कम से कम आप उसको कीमती पत्थरों के द्वारा सोने से बनाएं, Or try with silver. कम से कम चांदी से बनाएं। At least these will survive fire. कम से कम ये आग में टिक पाएंगे। Don't build your life with wood and hay. तो आप अपने जीवन को लकड़ी और भूसी से ना बनाएं। It will be very good and visible. वो सामने से तो बहुत सारी लगेगी, It will be burn off with fire. पर 2 मिनट में जल के राख हो जाएगी। Can't stand before Jesus. वो यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। Just think about it. आप इसके बारे में सोचें। Jesus comes back. अगर यीशु मसीह वापस आता Will है, you be standing before him confidently क्या आप उनके सामने कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ खड़े होंगे, or fearfully? या आप डर से थरथरा रहे होंगे? If you are standing fearfully, अगर आप डर से थरथरा रहे in होंगे, some areas of your heart, कि इसका अर्थ है आपके हृदय के कुछ you क्षेत्र, need to invite Jesus. वहां पे यीशु मसीह को You निमंत्रित can लेने की जरूरत है, start today. और वो आपको आज करने की जरूरत है। You don't have to wait for really judgment day. तो आपको न्याय के दिन का इंतजार नहीं करना है, Repentance is the best gift. और सबसे अच्छा उपहार हमारे लिए है पश्चाताप करना। Amen. आमीन। Are you blessed? क्या आप लोग आशीषित हुए? Can we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। You see, we are not perfect disciples. देखिए हम में से कोई भी एक सिद्ध चेला नहीं है, But as long as we are in the hands of Jesus, पर जब तक हम मसीह के हाथों में हैं, He is willing to mold us. तो वो तैयार है हमें आकार देने के He लिए। is willing to shape us. वो हमें आकार देने के लिए तैयार है। We are being perfected in Him. हम उसमें सिद्ध बनाए जा रहे हैं, It's not the message of legalism. और ये कोई रूढ़वादी संदेश नहीं है। As long as we are soaked in the water, और जब तक हम उस जल में भिगोए गए हैं, we have hope for a renewed life. हमारे पास आशा है एक नई जीवन की। This morning, all eyes are closed. और इस सुबह सारी आंखें बंद हैं। If you want to give your life to Jesus, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं, it's very simple. बहुत ही आसान है। You can put up your hands. आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। Jesus sees your hands. यीशु मसीह आपके हाथ को देखते हैं। You can begin your journey inviting Jesus in your life. आप अपने सफर को शुरू कर सकते हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देने के द्वारा। Put your hands in front of you. Put your hand high. अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। No one sees your hand but Jesus sees. कोई आपके हाथों को नहीं देख रहा है, सिर्फ यीशु मसीह आपके हाथों को देखता है। You can put your hands down. अब आप अपने हाथों को नीचे कर You सकते can हैं। say, Jesus, आप कह सकते हैं, यीशु I'm sorry. मुझे क्षमा करें, I have lived life मैंने एक ऐसा जीवन बिताया है sinfully. पाप में होकर, Forgive me, Lord. मुझे क्षमा करें, I come under the foot of cross. और मैं उस क्रूस के नीचे खड़ा होता हूँ। Your precious blood wash me. आपका जो पवित्र लहू है मुझे धो सके। Thank you for forgiveness. मुझे क्षमा देने के लिए धन्यवाद यीशु। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe in you. मैं आप पे विश्वास करता हूँ You died for me. कि आप मेरे लिए मारे गए, And on third day, और तीसरे दिन you rose again. आप जी उठे, And today you are alive. और आज आप जिंदा हैं, You are in our midst. और आप हमारे बीच में हैं। Thank you, Jesus, धन्यवाद हो यीशु, for receiving me आपने हमें ग्रहण किया है and having me in your. और आपने हमें अपनाया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, I receive you in my life.
मैं आपको अपने जीवन In Jesus' name. Amen.